everyone. Today we are going to start a new chapter from the course of class 9th, that is motion. This chapter is from physics background. To understand what is motion, firstly we need to understand the concept of rest. What do you mean by rest? Rest is basically a condition in which your object does not change the position with respect to time and surroundings. An object is said to be at rest when it does not changes its position with respect to time and surroundings. For example, a tree. Tree is fixed at a place. A building, an electric pole, even our house also. A building, electric pole, house, all these things are said to be at rest. Why? Because these things are not changing their position with respect to time and surroundings. Now let us say there is a car parked outside your home. After few minutes, the car traveled a distance of 2 meters and it is parked here. What we observe is that the car changes its position with respect to time and surroundings. So, car is said to be in motion. What is motion? What do you mean by motion? Motion is basically related to the movement. When an object changes its position, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, changes its position with respect to time and surroundings. With respect to time and surroundings का मतलब है कि टाइम चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है. With respect to time and surroundings, then object is said to be at, then object is said to be in motion. It is nothing but movement. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम के साथ और सराउंडिंग्स के साथ. अभी ये कार घर के लेफ्ट साइड थी, अब वो ट्री के राइट साइड है, तो उसकी सराउंडिंग्स भी चेंज हो गई टाइम के साथ. तो रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव कराने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, उसको रेस्ट में जाने के लिए. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. वैसे तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ऑलमोस्ट सेम है, बट फिजिक्स में इन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है. वो अभी हम स्टडी करेंगे हाउ दे आर डिफर. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, the actual path length traveled or covered by the object is called distance. For example, आपको अपने एक फ्रेंड के घर जाना है. You are at position A. आपको अपने एक फ्रेंड के घर जाना है which is at position C. लेकिन उससे पहले आपको एक दूसरे फ्रेंड के घर जाना है, वो है पोजीशन B पर. पहले आपको A से B पर जाना है which is at a distance of 5 kilometer. Then you will go back, come to this point C which is 3 kilometer away from B. So how much distance you covered? Distance covered is 5 plus 3, 8 किलोमीटर. अगर आप
डायरेक्टली ए से सी पर जाएं, डायरेक्ट ए से सी पर जाएं तो आप कितना कवर कर रहे हैं? 4 किलोमीटर. दैट इज डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन in a straight line path is called displacement. The shortest distance between the initial position, वो position है जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया है, एंड फाइनल पोजीशन जहां पे वो जाके रुक रहा है. तो उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और ये डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है. इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. डिस्टेंस तो कैसे भी हो सकता है, जिगजैग पाथ भी हो सकता है डिस्टेंस का, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. नेक्स्ट, distance is a scalar quantity. How distance is a scalar quantity? Because it tells us about the magnitude only. Distance is a scalar quantity as it only tells about the magnitude. Magnitude means just only the value, only value, like 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया है. बट डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज it tells about the direction also, because it tells us direction also. वो कैसे? जैसे अभी आपने ये 4 किलोमीटर देखा, ये 4 किलोमीटर किस साइड है? टुवर्ड्स ईस्ट. 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. जब आपको डायरेक्शन भी बता रहे हैं, then it means it is displacement. Third point is distance can never be zero. डिस्टेंस होता क्या है? जब आप कोई पाथ कवर कर रहे हो, अब जब आपने चलना शुरू किया है, यू आर इन मोशन, तो इट मीन्स यू विल कवर सम पाथ एंड द लेंथ ऑफ दैट पाथ विल टेल यू द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. वो कैसे? जब आप एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं चलना और डिस्टेंस कवर करके आप उसी पोजीशन पे ही आ जाते हैं. फिर से आप ए से स्टार्ट हुए थे एंड ए पे ही खत्म हुए. व्हेन इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड्स विथ फाइनल पोजीशन. कोइंसाइड करना मीन्स उसी के ऊपर आ जाना. व्हेन इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड विथ फाइनल पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. वो कैसे? जब आपने एक स्ट्रेट लाइन में मोशन स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, ये ओरिजिन है, आप O से A तक गए, you covered a distance of 40 kilometer. Then from A to B you covered 20 kilometer. फिर आप B से वापस आए C पर. 40 और 20 ये 60 है, और यहाँ टोटल अगर आप देखो
तो यहाँ तक 90 किलोमीटर आपने कवर किया है बी से सी आने में। लेकिन ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। बट अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 40 + 20 60 + 90 दैट इज 150 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, और वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड चला गया तो अब डिस्प्लेसमेंट आपकी आ जाएगी -30 किलोमीटर। इट विल बी नेगेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।